Assalamualaikum. Today's our presentation topic for PSOC class is production cost model. Before going to the topic, I am going to introduce you to my group members. We are two group members, one myself and other is Muhammad Arslan Farooq. Before going to the original topic of our presentation, I am going to explain you about what is production cost model, why it is used, and why it is significant in power sector. Basically, when production of power started in the early 1960s and 1970s, there was no policy of production cost models because there was very less amount of consumer, you can say, utilization, or very less amount of your power is utilized, and the production companies they are only producing electrical power for the less amount of consumers present around them. But as we know that population of our world is growing day by day, and our power consumption is also increasing day by day. So production cost models are the most important thing in power sector nowadays. Why? Because the companies that are producing power, they have to produce power for consumer, and then they have to generate a revenue for them, and revenue comes from the greatest planning of or budgeting. Production cost models include different types of things, but mainly the production cost model is applicable on thermal power plants, because if we see at hydropower plants and other renewable energy sources, their cost is not that much higher as compared to thermal power plants, because thermal power plants need fuel like petrol, diesel, gas, kerosene oil, and like these non-renewable resources. As we compare to our renewable resources have only running costs like their maintenance cost, their type of other security issues and security costs like this. But production cost models, basically these cost models are probabilistic, or you can say these are we use or we calculate our cost on the basis of probability. Means हम एक सिर्फ एक अंदाजा लगाते हैं और अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं. तो अगर हम अपने असल प्रेजेंटेशन की तरफ अगर चलते हैं, तो हम इंट्रोडक्शन में अगर देखें, सबसे जो पहला पॉइंट हमारा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट मॉडल और कंप्यूटेशनल मॉडल मींस कि ये लोग कंप्यूट किया जाता है इनको एंड कैलकुलेट अ जनरेशन सिस्टम प्रोडक्शन कॉस्ट. मींस के हमारे पास जनरेशन जो हम कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, और फिर हम इसको जो रिक्वायरमेंट आ रही है, हमारे पास कंज्यूमर की मांग क्या है, और हमें जनरेशन की का इनके दरमियान इंटरलिंक है. लें तो अगर कंज्यूमर की जो डिमांड है वो 800 मेगावाट है, तो अगर हम 900 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो 100 मेगावाट है वो हमारी जाया हो रही है, और उसमें हमारी लग रही है. एक्स्ट्रा कॉस्ट को भी हमने देखना होगा कि हम अपनी एक लिमिटेड अमाउंट तक अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहकर अपने कंज्यूमर को एक बहुत अच्छी और सोर्स के ऊपर पावर प्रोड्यूस. हमारे पास जितनी भी यूटिलिटी होती है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं. मींस के फॉर एग्जांपल हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, देयर आर लिंक टुगेदर. मींस वो आपस में एक लिंक क्रिएट कर रहे हैं जिसको मैं आगे बताऊंगा कि वो एक उसमें क्या उसकी मांग है, उसको हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे. अच्छा, दूसरी तरफ देखा जाए तो दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि they are widely used throughout the electric utility industry as an aid in long range system planning like fuel budgeting और system operation. ये जो हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट मॉडल्स हैं, ये आजकल के जो पावर सिस्टम है इसमें बहुत वाइडली यूज हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि मैं जैसे पहले बताया था कि दिन ब दिन हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो उसकी हमारी पावर कंजम्पशन में भी इंक्रीज आ रहा है. मींस के दिन ब दिन पावर की डिमांड बढ़ती जा रही है. तो अब पावर की डिमांड बढ़ती जा रही है, मींस कि हमारे पास कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी. अगर हम एक बगैर प्लानिंग के जनरेशन स्टार्ट कर देंगे, तो बगैर प्लानिंग के जनरेशन स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा नुकसान होगा. जैसे कि हमने इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम में देखा कि हमने एक प्लानिंग के तहत अपने यूनिट्स को चलाया ताकि हमारे पास जो कॉस्ट है हमारी एक मिनिमम कॉस्ट में रहे, और हम अपनी कंज्यूमर की डिमांड भी पूरी कर सकें, और अपने आप हमारी जो यूनिट्स की रनिंग कॉस्ट है, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, उसको भी बराबर रख सकें, ताकि हमारा जो है हमारे पास प्रॉफिट भी जनरेट हो, और हमारा अगर कोई नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान कम से कम हो. और अगर हमारे पास
हमारे अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारा थोड़ा बहुत नुकसान हो भी रहा है, लेकिन अगर आप बाहर की कंट्रीज में देखें तो उनकी जो सिंपल पॉलिसी ये है कि अगर आपका नुकसान हो रहा है तो आप उसमें कंप्रोमाइज करके अपने यूजर को एक अच्छी पावर, एक रिलायबल पावर देते हैं जिसमें आपकी पावर कट्स नहीं आती। तीसरा पॉइंट ये है कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कंप्यूटिंग future system energy cost is accomplished by using computer models of expected load patterns and simulating the operation of the generation system to meet these loads। मीन्स के ये जो हम प्रोडक्शन कॉस्ट मॉडल्स हैं इनकी कैलकुलेशन के लिए मॉडर्न टूल्स को यूज करते हैं प्रेजेंट वर्ल्ड में। जैसे हम देख सकते हैं, जैसे हम पीएसए की लैब में देखते हैं, हमने ई टैब यूज किया। ई टैब यूज किया मीन्स के ई टैब की एक लैब में हमने देखा कि सर ने हमें पावर लोड के फ्लो एनालिसिस बताया और उसके बाद उन्होंने हमें उस मॉडल टूल्स को यूज करते हुए उसकी कॉस्ट की कैलकुलेशन करना भी दिखाई। तो इसी तरह जितने भी हमारे पास मॉडर्न टूल्स हैं लाइक ई टैब, पावर वर्ल्ड सिम्युलेटर्स, उनको यूज करते हुए इनके लोड एनालिसिस को देखा जाता है कि हमारे पास पिछले साल लोड क्या था। हम पिछले साल का लोड भी देख सकते हैं, पिछले माह का भी देख सकते हैं, पिछले साल इस माह में क्या लोड था, इस माह में क्या होगा। मीन्स कि हम जितनी भी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं वो एक प्रोबेबिलिटी होती है। मीन्स कि अंदाजे के तहत लगा के हम जो अपना अंदाजा लगाया जाता है उस पर जितनी भी हम कैलकुलेशन करते हैं उसको हम आगे एप्लीकेबल करके जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं वो उसके आसपास होते हैं। तो वो हमें एक आसानी होती है और प्लानिंग के साथ हम अपनी जनरेशन करते हैं ताकि ना हमें कोई नुकसान हो और ना हमारा जो कंज्यूमर है या हमारा कोई भी यूजर है वो हमसे कहते हैं नाखुश हो के हमें जो है एक रिलायबल और एक अच्छी सोर्स की पावर नहीं मिल रही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस स्लाइड तक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो हेलो मुझे पहला पॉइंट दोबारा जरा बता दें, समझ नहीं आई दानिश में। पहला पॉइंट बेसिकली ये है कि प्रोडक्शन कॉस्ट मॉडल्स आर कंप्यूटेशनल मॉडल्स। मींस कि हम कंप्यूटेशन करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं अपने प्रीवियस डाटा को देख के। मींस कि आपने लोड कर्व के बारे में सुना होगा, आपने हम मतलब कि एनुअल लोड कर्व्स को देखते हैं, वीकली लोड कर्व्स को देख के अपनी प्रोडक्शन को देखते हैं कि हमने कितनी इस साल या इस माह में, गर्मियों के मौसम में या सर्दियों के मौसम में हमें प्रोडक्शन चाहिए। हम उस प्रोडक्शन को देखते हुए अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। हम फिर उस कॉस्ट को इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हमारे पास एक आइडिया आ जाए कि हाँ हमें इतने फंड रिक्वायर्ड होंगे ताकि हमारे पास इतनी कॉस्ट हो जाए ना, हमारे पास जनरेशन हो सके। और उसके बाद रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनर्जी इंपोर्ट्स, मतलब कि अब जितनी हमने जनरेशन की है उसमें हमारे पास यूजर कितने हैं और उनकी क्या डिमांड है। हम एक प्लानिंग के तहत अपने जनरेशन करते हैं, उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं और अपनी जो हमने जनरेशन की होती है उसकी को मद्देनजर रखते हुए अपने कंज्यूमर तक जनरेट की हुई पावर पहुंचाते हैं ताकि वो उसको रिलायबली इस्तेमाल कर सके ताकि उसमें कोई कट ऑफ ना आए। और अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी टू सेल टू अदर सिस्टम, मैंने जैसे बात की कि हमारे जितने भी जनरेशन सेक्टर है इसमें तमाम सिस्टम लिंक होता है। लिंक इसलिए होता है कि वो एक पूल बना हुआ होता है। मैं उसको अगली स्लाइड में आपको जब समझाऊंगा तो आप मुकम्मल तौर पर समझ सकेंगे कि पूल क्या होता है और ये क्यों लिंक किया जाता है। ठीक है अगर आप और क्लियर किसी हो को किसी को कोई और क्वेश्चन है तो मुझे पूछता है, मैं फिर अगली स्लाइड मूव करता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन हो अगर तो प्लीज मुझे काइंडली बता दें, नहीं तो मैं अगली स्लाइड मूव करता हूँ। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम अगली स्लाइड मूव करते हैं। अब जो मैंने बात की पिछली स्लाइड का आखिरी पॉइंट तीसरा के हमारे पास जो डिजिटल सिमुलेशंस होती हैं जिनमें हम मतलब कि अपनी कॉस्ट को अपने लोड को एनालाइज करके अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, तो उन डिजिटल सिमुलेशन में कुछ चीजें जो हैं वो इंक्लूड होंगी। तो उन डिजिटल सिस्टम में जो चीजें इंक्लूड होंगी वो कौन कौन सी हो सकती हैं। जैसे डिजिटल सिमुलेशन of generation system involve representation of generating unit efficiency characteristics। मींस के कोई भी यूनिट है उसके कोई ना कोई इनपुट या आउटपुट कर्व्स आएंगे। मींस के इतने टाइम पे ये इतनी जनरेशन कर रहा था और इतने टाइम पे इसने इतनी जनरेशन की। फॉर एग्जांपल अगर एक 80 मेगावाट का यूनिट है हमारे पास तो ये जरूरी नहीं कि वो हर वक्त 80 मेगावाट पे ही करता रहे।
वो आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट के वजह से, मैंने इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम में देखा कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के तहत उस जनरेटर स्टेशन को चलाते हैं। अगर वो 80 का है तो अगर हमें हमारे पास 40 मेगावाट की जरूरत है तो हम उसको 40 पे चलाएंगे। क्यों? क्योंकि से अगर हम उसको ज्यादा चलाएंगे तो हमारी एक तो पावर जाया हो रही है, दूसरी हमारी कॉस्ट बढ़ रही है। तो हमारा जो बेसिक मकसद यही है कि हमने कॉस्ट को एक मिनिमम वैल्यू पर रखते हुए अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है। दूसरी बात, फ्यूल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एनर्जी सप्लाइड मींस के जो दूसरी बात सिमुलेशन में क्या कहते हैं मॉडर्न टूल्स को देखिए कि हमने वो फ्यूल कॉस्ट जो है ना कैलकुलेट देनी होती है सिमुलेशन के अंदर, जो हमने एक यूनिट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करके सप्लाई की है अपने यूजर को। मतलब कि एक एक यूनिट जो हम जनरेट करते हैं ना अपनी यूनिट पावर यूनिट से या जनरेटिंग यूनिट से, वो कितनी फ्यूल कॉस्ट के अंदर जनरेट हुआ है और अपनी सिमुलेशन में उसको यूज करते हैं। तीसरा पॉइंट, सिस्टम ऑपरेटिंग पॉलिसीज विद रिगार्ड टू स्केड्यूलिंग ऑफ यूनिट ऑपरेशन। मतलब कि हमारे पास सिस्टम की ऑपरेटिंग पॉलिसीज क्या है। क्या ऑपरेटिंग पॉलिसी है कि बेस लोड पे हमने कौन से यूनिट चलाने हैं, पीक लोड पे हमने कौन से यूनिट चलाने हैं, ये तमाम की तमाम पॉलिसीज उस हमने सिमुलेशंस में यूज करते हैं ताकि हमारे सिस्टम की स्केड्यूलिंग जो हम करते हैं कि इस वक्त हमने इस यूनिट को इतने मेगावाट पे रखना है, इस यूनिट को इतने मेगावाट पे रखना है। अगर हमारा कोई भी यूनिट मेंटेनेंस की वजह से बंद पड़ा है तो हमने उसकी ऑक्सिलरी जो यूनिट है उसको कितना चलाना है। आखिरी पॉइंट, contracts for the purchase and sale of both energy and power capability, the economic dispatching of group units that are online means, जैसे मैंने पहले ही बताया कि कॉन्ट्रैक्ट्स, मैंने जैसे बताया कि तमाम की तमाम पावर जनरेशन सेक्टर के जितने भी, जैसे हमारे मुल्क में डिफरेंट जनरेटिंग सेक्टर्स के बाद जो हमारे पास यूटिलिटी कंपनीज हैं, आइस्को है, पेप्को है, तमाम की तमाम इंटरलिंक होती हैं और एक दूसरे की मदद करती हैं ताकि अगर किसी एक कंपनी को अपने कंज्यूमर की नीड पूरी करते मुश्किल आ रही है तो वो उसको मदद कर सके। तो यहाँ पे एक दूसरे से भी पावर को परचेज करके अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई किया जाता है। और ये हम इकोनॉमिक डिस्ट्रैप प्रॉब्लम में पढ़ चुके हैं कि जो यूनिट्स होते हैं उन यूनिट्स को हम एक खास हद तक चलाते हैं ताकि हमारे पास पावर भी जाया ना हो। बार बार बात जो आ रही है कॉस्ट को मिनिमम करना है। क्यों? क्योंकि हमारा असल मकसद ये है कि अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई किया जाए एक मिनिमम कॉस्ट के अंदर, जिसमें हम हमारी जो यूटिलिटी कंपनीज हैं वो रेवेन्यू भी जनरेट कर सकें और अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई भी कर सकें। अगर इस स्लाइड में किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ सकता है, नहीं तो मैं आगे मूव करता हूँ। Any question regarding this slide? No. Okay, then we can move on. Okay, now this is a flow chart. Basically, it is single area energy projection cost program. It's an example you can say, or you can say a very small type of area where we need to provide energy from utility and then how to calculate the production cost. It is a probability function, means we have to make an assumption. For example, if I take an example for last year, if that area has a demand of 800 megawatts due to some construction, and this year they have a demand of 900 megawatts, and last year their production cost for about 1 lakh. So we can say that if the production, or you can say the demand has increased by, you can say 2 or 3%, then the cost including that also increases. But हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे फ्यूल की जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट करती हैं, मींस के वो कम भी हो सकती हैं, वो ज्यादा भी हो सकती हैं। तो उस तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी जो कैलकुलेशंस होती हैं एजम्पशंस भी कैलकुलेट करनी होती हैं। अगर फ्यूल कॉस्ट को कम रख के भी कैलकुलेशन करनी है, फ्यूल कॉस्ट को कांस्टेंट रख के भी कैलकुलेशन करनी है, फ्यूल कॉस्ट को ज्यादा रख के भी कैलकुलेशन करनी है, ताकि हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशंस हों, ताकि अगर कहीं पे भी अगर फ्यूल कॉस्ट कांस्टेंट रहती है या फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाती है या फ्यूल कॉस्ट कम हो जाती है, तो हम अपने पास जो हमारे पास कैलकुलेशंस हों वो ऑलरेडी प्लानिंग में हों और हम उनके तहत अपनी जनरेशन कर सकें और अपने यूजर को सेटिस्फाई कर सकें। अगर हम इस फ्लो चार्ट में देखें तो एक बेसिक सा फ्लो चार्ट है। स्टार्ट किया और इनिशियलाइज किया है। इनिशियलाइज में कौन सी चीजें आएंगी? इनिशियलाइज में हमारे पास वही चीजें आएंगी जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताई कि जो हमारे पास सिमुलेशंस आएंगी मॉडर्न टूल्स को यूज करते हुए। अब रीड इनपुट्स में वो तमाम चीजें आएंगी जैसे मैंने आपको बताया, इनपुट आउटपुट कर्व्स होंगे आपकी फ्यूल की जो कॉस्ट होगी पर यूनिट को यूज करते हुए वो कितनी थी। उसके बाद आपके पास वो तमाम पॉलिसीज आएंगी जिनके तहत आप अपनी पावर अपने कंज्यूमर को ट्रांसफर कर रहे हैं। अच्छा, अब हम एक बात ये भी है कि एनुअल मेंटेनेंस शेड्यूल,
मीन्स के ये बात भी हम साथ साथ देखेंगे कि कोई भी पावर प्लांट साल के 12 महीने नहीं चल सकता, उसको मेंटेनेंस की जरूरत होती है। मींस आप यूनिट को देख सकते हैं, आप फॉर एग्जांपल गाड़ी की एग्जांपल ले लें, अगर आप गाड़ी की भी मेंटेनेंस चाहिए, गाड़ी को मेंटेनेंस, गाड़ी को उसकी इंजन ऑयल चाहिए, इसी तरह जो हमारे पास जनरेटिंग यूनिट्स होते हैं उनकी ऑयल चाहिए, उनकी क्लीनिंग होनी है, उनकी क्लीनिंग, उनकी सेफ्टी में उसको देखना है। तो मीन्स के तमाम की तमाम यूनिट्स को हमने उनकी जो मेंटेनेंस स्केड्यूल है उसको भी ऐड करना है। उसके बाद एनुअल लोड मॉडल, एनुअल लोड मॉडल क्या, जैसे मैंने पीछे ही बताया कि एनुअल लोड मॉडल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हम पिछले तमाम जो डाटा है पिछले सालों का उनको चेक करते हैं कि हमारा पिछले साल इस एरिया का लोड क्या था, उससे पिछले साल क्या था, क्या फ्लक्चुएशंस आई थी, वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन भी हम देते हैं। उसके बाद मॉडिफाई लोड्स टू अकाउंट फॉर हाइड्रो प्लांट स्केड्यूल्स एंड इंटरचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे मैंने बताया आपको कि जब पावर सिस्टम में तमाम के तमाम जनरेटिंग यूनिट्स आपस में इंटरलिंक होते हैं। फॉर एग्जांपल मॉडिफाई लोड टू अकाउंट फॉर हाइड्रो पावर प्लांट, मैंने बताया कि आपका कोई भी थर्मल पावर प्लांट्स वो मेंटेनेंस पे जा सकते हैं, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट को बेसिकली हम बेस यूनिट्स पे लेते हैं ज्यादातर। तो अगर हमारा थर्मल पावर प्लांट किसी मेंटेनेंस की वजह से स्केड्यूलिंग में स्केड्यूल पे है, मेंटेनेंस स्केड्यूल पे है, तो हम अपने हाइड्रो पावर प्लांट्स को उसके साथ इंटरलिंक करवा के कि कहते हैं हम अपनी यूजर की डिमांड कब पूरी कर रहे हैं और किस टाइम पूरी कर रहे हैं, वो हम देखेंगे अपने एनुअल मेंटेनेंस स्केड्यूल से। उसके बाद जो स्टेप आता है वो ये होता है कि स्केड्यूल एंड डिस्पैच पंप स्टोरेज हाइड्रो एंड थर्मल पावर प्लांट। अब हमने पावर जनरेशन में आई थिंक सिक्स सेमेस्टर में पढ़ा था कि जब हम पीक लोड पे होते हैं तो उस वक्त हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट की ऑपरेशन में होते हैं, तो कभी कभार हमारे पास जो रेजरवायर का लेवल होता है वो इतना बढ़ जाता है कि हमें अपने वाटर को डिस्चार्ज भी करना होता है, मतलब कि हम डैम को बंद नहीं कर सकते, हम अपने वाटर लेवल को रोक के नहीं रख सकते। तो अगर हम वाटर लेवल को रोक के नहीं रख सकते मीन्स हमारा जो वाटर है वो जाया हो रहा है। तो उसमें हम ये करते हैं कि हम थर्मल पावर प्लांट्स को एज अ बेस लोड पे ले लेते हैं और अपने यूजर को प्रोवाइड करते हैं। और अगर हाइड्रो पावर प्लांट की जरूरत पड़ गई है तो हम तमाम की तमाम जनरेटिंग यूनिट्स को चलाकर, अगर कोई पावर हमारी जाया हो रही है तो उसमें हमारे पास पंप्स इंस्टॉल्ड होते हैं, हम वो पंप्स को यूज करते हैं और जो हमारा वाटर टरबाइंस के थ्रू बाहर निकल जाता है उसको दोबारा, जो हमारे पास एक्स्ट्रा पावर जनरेट हो रही है उसको उन पंप्स को यूज करते हुए उस पूरे पानी को दोबारा हम अपने रेजरवायर में मूव कर देते हैं। ये पॉइंट भी हमारे पास आता है क्योंकि कभी कभार हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि हमें डैम्स को बंद भी नहीं करना पड़ता और हमें जनरेशन भी फौरन से फौरन करनी पड़ती है, और हम मतलब कि हम अपनी पावर को एक किस्म के अपने कंजर्व में लाने, मतलब पावर जाया नहीं हो रही और ना ही हमारे पास रेजरवायर का लेवल डाउन होता है। उसके बाद हम रिजल्ट्स को प्रिंट करते हैं और हमारे पास सिस्टम, आपके पास आउटपुट आ जाती है। अगर आपके पास सिस्टम, तो अगर आपने अपने जो रिजल्ट्स आपने चेक किए हैं वो आपके पिछले साल के साथ साथ से आ रहे हैं, मीन्स के उसके बिल्कुल लगभग आ रहे हैं जो आपने फ्यूल कॉस्ट ये जम्पशंस की, तो ठीक है, नहीं तो आप दोबारा इस सिस्टम को रन करते हैं और अपने लिए एक नई सिस्टम प्लानिंग निकालते हैं। बेसिकली इस सिस्टम को प्लान करने की सबसे मेन वजह यही है कि आप अपने यूजर को सेटिस्फाई करें एक मिनिमल कॉस्ट के अंदर रहते हुए, और अपने तमाम जो है यूनिट्स उनकी मेंटेनेंस को भी साथ साथ करते रहें ताकि कोई बड़ा ब्रेक डाउन होने से बच जाए। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस स्लाइड? कोई भी क्वेश्चन अगर आपका इस स्लाइड्स के लिहाज से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी दानिश, थोड़ा इसको वाइंड अप करें क्योंकि कुछ मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं लिंक में कुछ इशू की वजह से ज्वाइन नहीं कर सके, तो ये हम उनको रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। तो इनके जो क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में भी कर लेंगे। जो अभी मौजूद हैं वो तो अभी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आप इसको कंटिन्यू करें एट द एंड ऑफ द आपकी जो है प्रेजेंटेशन, वो फिर सारे क्वेश्चन एट अ टाइम कर लेंगे। ठीक है, आप बाकी स्टूडेंट से भी गुजारिश है कि क्वेश्चन को राइट डाउन कर लें ताकि हमारा जो टाइम है वो बच सके। और उसके बाद हमने जो बाकी प्रेजेंटेशंस हैं वो भी आज नहीं लेंगे, वो नेक्स्ट पे लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स में मेरे ख्याल से इस लिंक को हमने राउंड अबाउट 40 मिनट्स की वो इजाज़त देते हैं और हम इसको 2 आवर से ज़्यादा हो चुके हैं और 3 to 4 टाइम्स इसी लिंक को हमने यूज़ किया है। तो आप इसको कंटिन्यू करें, रिकॉर्डिंग जारी है, मैं उसको शेयर भी कर दूंगा और बाकी वहाँ से देख लेंगे और जो क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पहले इनको देख लेंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्लास में आपने प्रेजेंटेशन के लिए रेडी रहना है। फिलहाल आपने जो अपना चीज़ डिलीवर करनी है उसको डिलीवर करें। थैंक यू। थैंक यू सर।
नेक्स्ट स्लाइड को मूव ऑन करते हुए अगर हम देखें तो जो हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोग्राम्स होते हैं ये यूज कहाँ होते हैं। तो बेसिकली सबसे जो पहला पॉइंट है लॉन्ग रेंज प्लानिंग के लिए, मींस कि हम इससे सिर्फ एक हफ्ते की या एक माह की या एक 2 से 3 माह की नहीं, बल्कि हम इससे सालों की क्या कहते हैं कैलकुलेशन कर सकते हैं। मींस अपना प्रीवियस ईयर का डाटा इस्तेमाल करते हुए हम अपने आने वाले सालों के ऊपर प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया फ्यूल कॉस्ट को देखते हुए, अपनी मेंटेनेंस कॉस्ट को देखते हुए कि पिछले साल हमारे पास फ्यूल कॉस्ट क्या थी, क्या फ्यूल कॉस्ट कांस्टेंट रही है, हमारा क्या मुल्क हमारा पास जो एनर्जी सोर्सेज है वो जनरेट कर रहा है क्या नहीं कर रहा, अगर क्या हमारा मुल्क जो है वो जो ऑयल यूज हो रहा है, पेट्रोल डीजल कैरोसिन कुछ भी यूज हो रहा है, वो क्या हमारा मुल्क प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हमारा मुल्क प्रोड्यूस कर रहा है तो हमारा कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है, क्योंकि हम कॉस्ट की एनालिसिस को आसानी से देख सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमारा मुल्क अपनी एनर्जी सोर्स को पूरा करने के लिए ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है, तो हम उसकी कॉस्ट को कैलकुलेशन प्रोबेबिलिस्टिक कर सकते हैं, मींस एक अंदाजे के साथ कर सकते हैं। वो फिर डिफरेंट तरीके से होगी, या उसको कम करके देखा जा सकता है, कांस्टेंट पे देखा जा सकता है, या उसको ज्यादा करके देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि फ्यूल कॉस्ट कभी भी सेम नहीं रहती। जैसे हमने भी देखा कि ऑयल मार्केट क्रैश कर गई, तो इस तरह की भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि जिनको हम मद्देनजर रखते हुए कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, दूसरी बात फ्यूल बजटिंग। फ्यूल बजटिंग मींस कि हम फ्यूल के बजट को कैलकुलेट, जैसे मैंने बात की फ्यूल बजट को कैलकुलेट किया, फिर हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास जनरेटिंग स्टेशन हैं, ये जनरेटिंग यूनिट्स हैं, इनके पास कितना फ्यूल रिजर्वायर में होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी क्राइसिस आ जाता है तो वो फ्यूल की प्राइस को वो क्या कहते हैं कैलकुलेट ना कर पाए, और कैलकुलेट करके अपने पास रख ले। अगर कोई भी क्राइसिस आ जाता है, जैसे ऑयल मार्केट क्रैश कर जाती है या कोई ऐसा क्राइसिस आ जाता है कि फ्यूल शॉर्ट हो जाता है, तो वो अपने पास फ्यूल को रख पाए। उसके बाद ऑपरेशनल प्लानिंग करते हैं हम इसके साथ। ऑपरेशनल प्लानिंग कैसे आएगी? ऑपरेशनल प्लानिंग ये होती है कि हम अपने यूनिट्स को किस टाइम पे कौन से यूनिट को ऑपरेट करना है, अपनी डिमांड को देखते हैं, कंज्यूमर के पास डिमांड क्या है, डिमांड को देखने के बाद अपने यूनिट्स की ऑपरेशन प्लानिंग करते हैं, ताकि वो हमारे पास एक प्री डिटरमाइंड प्लानिंग हो और हम अपने यूजर को एक रिलायबल और सेफ पावर सप्लाई कर सके, ताकि वो क्या कहते हैं अपनी जो डिमांड है या अपना जो उसकी यूज पावर है उसको आसानी से यूज कर सके। वीकली स्केड्यूल्स को मेनली इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि एक हफ्ते का जो आप आइडिया लगा सकते हैं अपने पिछले एक माह को या अपने पिछले 1 से 2 हफ्ते को देख के, क्योंकि मौसम के लिहाज से भी आपके पास जो जनरेशन कैपेसिटी होती है वो चेंज होती है। तो वीकली स्केड्यूल्स को इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है ताकि उसी वक्त अपने यूजर को सेटिस्फाई किया सके। मैंने आपको बताया था कि पूल अलोकेशन ऑफ पूल सेविंग, बेसिकली पूल सेविंग होता क्या है। मैंने आपको ऐसे बताया था कि पूल सेविंग बेसिकली पूल सेविंग जो होती है कि ये यूज किया जाता है बैलेंस इलेक्ट्रिकल लोड और लार्ज नेटवर्क देन अ सिंगल यूटिलिटी। मींस के आप इंटरलिंक होते हैं, जितने भी हमारे जनरेटिंग स्टेशन होते हैं या जितने भी हमारे पास क्या कहते हैं पावर जनरेशन यूनिट्स होते हैं, या जितने भी हमारे पास यूटिलिटी जो हमें पावर प्रोवाइड कर लेते हैं, ये अपने आपस में इंटरलिंक होते हैं, जिसका फायदा उनके लिए भी है और हमारे लिए भी है। उनके लिए फायदा ये है कि वो फॉर एग्जांपल कोई भी यूटिलिटी अपने कस्टमर की डिमांड पूरी नहीं कर पा रही, तो वो दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हुए एक दूसरे पावर प्रोड्यूसर से बिजली को इंपोर्ट करके अपने कंज्यूमर की डिमांड को पूरी करते हैं। उनको ये फायदा है कि उनका कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाएगा, और हमारे पास ये फायदा है एज ए कंज्यूमर कि हम अपनी पावर जो हमारी पास पावर कंजम्पशन को इजीली यूज कर पाएंगे और हमारी पावर में इंटरप्शन नहीं आएगी, और हम अपने यूटिलिटी से जो है वो सेटिस्फाई रहेंगे। पूल सेविंग की मतलब कि ऑपरेटिंग कॉस्ट इसमें काफी ज्यादा फवायद हैं। जैसे कि पहला फायदा यह कि डिक्रीज इन ऑपरेटिंग कॉस्ट। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी सिंगल हैंडेडली अपने मतलब कि एक ही पावर प्रोड्यूसर है और किसी सी भी यूटिलिटी से लिंक नहीं है और अपने यूजर को पावर प्रोवाइड कर रही है, तो अगर उससे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि उसका एक यूनिट डाउन हो गया है, जो कि फॉर एग्जांपल हमारी डिमांड है वो 800 मेगावाट है, और उसका यूनिट डाउन हो गया, उसकी यूनिट की कॉस्ट आ गई है नीचे में के जो उसका सबसे सस्ते वाला यूनिट था वो चल रहा था, और अब उसके बाद जो ऑक्सिलरी यूनिट है वो बहुत ही महंगा तरीन यूनिट है। तो मीन्स के अगर वो उस यूनिट को चलाएगा, फॉर एग्जांपल वो ऑयल या क्रूड ऑयल पे चला रहा है, तो उसकी जो कॉस्ट आएगी वो गैस थर्मल पावर प्लांट से ज्यादा होगी निस्बतन जो गैस पे चल रहा था। तो जो
उसकी कॉस्ट होगी वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, जिससे कंपनी का रेवेन्यू कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, और इसमें ये भी आएगा कि हमारे पास जो कंज्यूमर है उसकी पावर कट्स आ जाएंगी, और फिर वो कंज्यूमर उसकी जो यूटिलिटी है वो उसकी मांग पूरी नहीं कर पाएगा। इसलिए जब तमाम की तमाम यूटिलिटी से दूसरे से इंटरलिंक होंगी, तो किसी भी यूटिलिटी को अगर किसी टाइप की भी प्रॉब्लम आएगी, तो वो अपनी प्रॉब्लम दूसरे यूटिलिटी प्रोवाइडर से वो इतनी पावर परचेज करके अपने कंज्यूमर को प्रोवाइड कर देगा, और इसमें दोनों की क्या कहते हैं फायदा है। उसके बाद मतलब कि इसके और से फायदे में यह आता है कि सेविंग इन रिजर्व कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स है, हेल्प फ्रॉम पूल इन यूनिट कमिटमेंट, मतलब कि पूल के दरमियान में भी आपको यूनिट कमिटमेंट पे भी हेल्प मिलती है। मोर रिलायबल ऑपरेशन इस तरह है कि मतलब कि कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई रहेगा। दानिश, अगली स्लाइड। यस सर। आपकी स्लाइड्स जो है आगे मूव नहीं हो रही। नहीं सर, ये मैं इसी पॉइंट को एक्सप्लेन अच्छा, कर रहा था। मैं सही है, स्लाइड सही सही सही, अभी थोड़ा सही है। बेसिकली अब जो हमारा अगला टॉपिक है ये कि लोड कर्व। लोड कर्व क्यों यूज की जाती है किसी भी कॉस्ट कैलकुलेशन में? क्योंकि लोड कर्व बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका कॉस्ट कैलकुलेशन में। क्यों? क्योंकि ये आपको एक दिन की, एक माह की, एक हफ्ते की, एक साल की, 10 साल की आपकी वो तमाम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है कि पिछले साल जो हमारे पास इस माह में क्या लोड रिक्वायरमेंट थी किसी भी एरिया की। जैसे कि मैं देखना चाहूँ तो इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अ लोड प्रोफाइल इज अ ग्राफ ऑफ द वेरिएशन इन इलेक्ट्रिकल लोड वर्सेस टाइम। ये बेसिकली ग्राफ होता है कि किस टाइम हमारे पास कितने लोड पे हमारे मतलब कि हमारे कंज्यूमर के पास क्या डिमांड थी, उसको क्या लोड डिमांड थी। अ लोड प्रोफाइल विल वेरी अकॉर्डिंग टू, ये वेरी करती है किसके? कस्टमर टाइप। आपका कस्टमर टाइप क्या है? वो डोमेस्टिक भी हो सकता है, वो आपकी इंडस्ट्री हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। टेम्परेचर एंड हॉलीडे सीजन। टेम्परेचर मीन मौसम कैसा है आपका, गर्मी है, सर्दी है। लाजमन सर्दियों में हमारे पास पावर की जो डिमांड होती है वो जो गर्मियों में पावर की डिमांड होती है कम होती है। जैसे हॉलीडे सीजन है, कुछ छुट्टी है, उस दिन हमारे पास क्या होगी? पावर प्रोड्यूसर यूज दिस इंफॉर्मेशन टू प्लान हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी दे विल नीड टू मेक अवेलेबल एट एनी टाइम। मतलब कि जितनी पावर प्रोड्यूसर्स हैं वो इस चीज को इंश्योर करते हैं कि उनके पास एग्जैक्ट लोड कर्व हो, ताकि वो अपने कंज्यूमर की नीड को उस टाइम पे पूरा कर सकें एक प्लानिंग को करते हुए। अगर हम इस लोड कर्व को समझना चाहें तो आपके पास एक्स एक्सिस पे टाइम आ जाएगा और वाई एक्सिस पे आपके पास लोड आ जाएगा। ये एक डेली लोड कर्व है जो हमें ये बता रही है कि 6 AM टू AM जो हमारे पास लोड था वो अराउंड अबाउट 20 किलोवाट था। इसी तरह जब हमारे पीक आवर्स आ गए 8 AM टू 2 PM जो कि वर्किंग आवर्स हैं, तो उनमें जो हमारे पास लोड था वो 35 किलोवाट तक चला गया। उसके बाद 2 PM 3 PM आ गया, उस वक्त हमारे पास मीडियोकर से लोड होता है इस टाइम में, तो उस वक्त हमारे पास 24 किलोवाट लोड आया। अब 3 PM टू 6 PM जो कि हमारे पास छुट्टी का टाइम होता है, लोग घरों को वापस जाते हैं, उस वक्त भी हमारे पास एक आप समझ लें कि पीक टाइम से थोड़ा सा लोड, क्योंकि इंडस्ट्री तो बंद होती है लेकिन लोग अपने घरों को मूव कर रहे होते हैं, घरों में जाके उनके अप्लायंसेस ऑन होने शुरू होते हैं। उस वक्त जो हमारा लोड है वो 30 किलोवाट है। 6 PM टू 6 AM ये रात का वक्त है, तो उस वक्त हमारे पास जो लोड है वो 3 किलोवाट। मीन्स के ये डेली लोड कर्व है जो हमें बता रही है कि इस दिन में ये वाला लोड है। इसी तरह हम एक माह की लोड, एक मंथ की, एक वीक की, एक ईयर की बना के 10 ईयर्स की बना सकते हैं, और अपना लोड की वेरिएशन को चेक करते हुए अपनी लोड कैलकुलेशन के अंदर यूज करते हुए अपने यूजर की डिमांड को सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मूव करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो लोड ड्यूरेशन कर्व है। बेसिकली लोड ड्यूरेशन कर्व लोड कर्व की तरह ही है लेकिन ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। मैं अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो लोड ड्यूरेशन कर्व इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन टू इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन जनरेशन कैपेसिटी रिक्वायरमेंट एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ये एक रिलेशन प्रोवाइड करती है आपको कि आपकी जनरेशन की कैपेसिटी कितनी है और आपकी कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन मींस कि आपकी यूटिलाइज कितना की है। LDC means load duration curve is similar to load curve, but the demand data is ordered in descending order of magnitude rather than chronologically. Means इसमें हम descending means कि हम इसमें सबसे पहले अपना पीक लोड रखते हैं कि हमारे पास पीक लोड क्या था, उसके बाद हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, फॉर एग्जांपल अगर हम इस लोड का लोड ड्यूरेशन कर्व में देखें तो सबसे पहले हमारे पास 1500 मेगावाट लोड था, उसके बाद फिर हमारे पास 1400 हो गया, 1300 हो गया, 1200 हो गया। मतलब कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इस लोड ड्यूरेशन को यूज करते हैं क्योंकि इसको यूज करते हुए हमारी कॉस्ट कैलकुलेशन काफी आसान हो जाती है। मैं इसको एग्जांपल के तौर पे भी बताना चाहूंगा आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के थ्रू कि अगर हमारे पास
एक डाटा दिया जाए कि हमें एक लोड ड्यूरेशन कर्व कैसे बनाई जाती है। द लोड कॉन्सिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, एक डाटा है हमारे पास जिसमें हमारे पास लोड है मेगावाट में, 100 मेगावाट, 80 मेगावाट, 40 मेगावाट। ड्यूरेशन मींस कि 100 मेगावाट का लोड हमारे पास 20 आवर्स के लिए था, 80 मेगावाट का लोड आपके लिए 60 आवर्स के लिए था, और जो आपको 40 मेगावाट का लोड था वो आपके लिए 20 आवर्स के लिए था। और जो इसमें हमने एनर्जी प्रोड्यूस की वो इस तरह है कि हमने अपने लोड को जितने ड्यूरेशन के लिए चला मीन 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो हमें 2000 एनर्जी मीन 2000 मेगावाट ऑफ आवर ऑफ एनर्जी हमने 20 घंटे में प्रोवाइड की। इसी तरह 80 मेगावाट लोड को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अपनी ड्यूरेशन 60 के साथ, तो 4800 मेगावाट आवर ऑफ एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस हुई। तो इसी तरह हम तीसरे लोड के लिए भी कैलकुलेट करेंगे, मीन्स कि जो हमने टोटल एनर्जी कैलकुलेट की और जनरेट की वो 7600 मेगावाट ऑफ एनर्जी जनरेट की। कितने आवर्स में? 100 आवर्स में। जो हमारे पास हमारे यूनिट्स चले हैं वो 100 आवर्स तक के चले हैं। फ्रॉम दीज डाटा वी में कंस्ट्रक्ट अ लोड ड्यूरेशन कर्व इन टेबुलर एंड ग्राफिकल फॉर्म, मींस कि हम उसको टेबल की फॉर्म में भी बना सकते हैं लोड ड्यूरेशन कर्व को, और उसको ग्राफिकल फॉर्म में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जब भी कभी ग्राफ बनाया जाता है तो उसमें एक चीज को हमेशा याद रखा जाता है कि उसमें हम इंटरवल्स जो लेते हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे वो सेम लेते हैं। यहाँ पे जो हमने लिया है वो 2020 का लिया है, मींस कि अगर आप यहाँ पे लोड को देखें तो 0 to 20 देखो 0 to 20 मेगावाट, 20 मेगावाट टू 40 मेगावाट, 40 मेगावाट टू 60 मेगावाट, 60 मेगावाट टू 80 मेगावाट, 80 टू 100 एंड 100 प्लस। और कितने ड्यूरेशन के लिए वो लोड चला था, तो देखें अगर हम पिछली स्लाइड पे जाएं तो हमारे पास जो पहला लोड था वो था 40 मेगावाट जो कि 20 घंटे के लिए चला था। मैंने जैसे बात की कि हम यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, तो 20 मेगावाट का लोड तो हमारे पास था ही नहीं, तो मीन्स कि वो चला ही नहीं, तो हम 40 मेगावाट के लिए यूज करेंगे तो वो 20 आवर्स के लिए चला। इसी तरह अगर हम पिछले डाटा में देखें तो हमारे पास 60 मेगावाट का लोड मौजूद ही नहीं था, तो हम उसको निगलेक्ट करेंगे और 80 मेगावाट के लोड पे जाएंगे जो कि हमारे पास 60 आवर्स के लिए चला। उसके बाद हमारे पास 100 मेगावाट का लोड था जो 20 आवर्स के लिए चला, हम और इसी को कंसिडर करेंगे और आगे मूव करेंगे। मैंने जैसे आपको बताया था कि हम अपनी जो लोड कर्व है वो बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में चलाते हैं। तो इस चीज को समझाने के लिए पहले आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है। ये जो हमारे पास ग्राफ है, मैं ग्राफ में दिखा सकूं आपको, तो ये हमारा जो पीक लोड था 100 मेगावाट वो बेसिकली सबसे पहले आया है। उसके बाद जो हमारा लोड था वो था 80 मेगावाट जो कि यहाँ पे है, ये 90 रहा और ये रहा 80, वो यहाँ पे है हमारे पास। उसके बाद जो हमारे पास लोड था वो 60 मेगावाट है जो कि हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद जो हमारे पास लोड था वो 40 मेगावाट, 20 मेगावाट, वो इसी तरह कम होता जा रहा है। मींस के 0-0 इंटरवल पे हमारे पास 100 मेगावाट ऑफ लोड था। उसके बाद हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चलाएंगे और इससे हम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो जो अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा आपको। हम आगे चलते हैं। इसमें हमारे पास एक लोड ड्यूरेशन कर्व दी गई है और 2 यूनिट्स हैं। 2 units of generating system have following characteristics. Danish, we have only 4 minutes remaining, so if you can cover up these numerical in 4 minutes, it will be okay. Otherwise, we will do in next lecture. It will be cover in 4 minutes. सर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करनी पड़ेगी और तो उसमें कोई लेंथी लग रहा है मुझे, जैसे जो आप न्यूमेरिकल जिसकी तरफ 4 मिनट्स में तो मुश्किल है सर, अगला ज्यादा इस न्यूमेरिकल के बाद भी 15 मिनट हैं, 20-15 मिनट। तो इस तरह करते हैं कि इसको अभी हम यहीं पे डिसकंटिन्यू कर देते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आपको यहीं से स्टार्ट कर देंगे। मीनवाइल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो आज इंटर नहीं हो सके किसी वजह से, वो भी दोबारा से आ जाएंगे। ये मैं उनके लिए भेज दूंगा, उनको मैं रिकॉर्डिंग की हुई है, इस पे क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर का सेशन भी इस पे रहता है और आपकी गालबन सेकंड न्यूमेरिकल से ऑनवर्ड भी रहता है। ठीक है जी, बिल्कुल सर। सर ये असल में लंबा ये इसलिए है कि सर क्योंकि ये कॉस्ट कैलकुलेशन है, तो सर इसमें जी मैंने देखा है ये तो जी, तो नहीं इसको डिटेल से करेंगे। मीनवाइल अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं, तलहा, जाकिरुल्लाह, अगेन तलहा, अदील, जलाल, तो यही लोग हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चंस हैं तो वो कर लें, नहीं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। जी एनी क्वेश्चन आप लोगों को? अगर न्यू सेशन स्टार्ट करें और नेक्स्ट सेशन में खत्म कर दें ऐसे सर? नहीं नेक्स्ट में करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो जो नहीं आ रहे थे
वो अभी हो गए हैं, लीव कर गए ना, उनको अटेंडेंस का वो मैंने भेज दिया था। तो गालबन इसके बाद आपकी कोई दूसरी क्लास भी मेरे ख्याल से होगी। तो ज्यादा नहीं करते, बस थोड़ा बहुत, इट्स इनफ आई थिंक सो। वी हैव टाइम क्या हो गया एग्जैक्टली? तो 1:10 हो गया। हाँ जी, इट्स ओके, ज्यादा नहीं। ठीक है जी। ओके सर। ठीक है सर, क्योंकि थोड़ा लेंथी है, जी क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस आ जाती हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा, तो 3 से 4 मिनट में कवर नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, अभी तो 2 मिनट रह गए हैं, तो हम नेक्स्ट में इसको करेंगे। अरसलान, आपने भी करना है ना, गालबन आपकी अभी बारी रहती है, तो क्वेश्चन आंसर बिल्कुल भी सर। नेक्स्ट में कर लेंगे। अटेंडेंस का लिंक शेयर कर चुका हूँ ग्रुप में। और दानिश, आप लोगों को बताइएगा कि जो अकाउंट के डिटेल्स हैं वो भी किसी स्टूडेंट ने आपकी उसी ग्रुप में शेयर कर दी हैं। तो जैसी भी चीज़ें जो हमने थी, आप 30 लड़के आज मौजूद थे, तो जो नहीं थी, ये जो मैंने आप डिस्कशंस की हैं, ये उन तक पहुंच जानी चाहिए। जो भी हमने एंड सेमेस्टर के एग्जाम से की थी, पॉलिसीज, ग्रेडिंग पॉलिसीज के हवाले से की थी, वेटेजेस के हवाले से की थी, ये उन तक पहुंच जानी चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।